سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، دیکھنی چاہیے کہ ہمیں اس بات پر حیل و حجت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کس بات پر حیل و حجت؟ کہ کون امام مہدی ہوں گے، ان کا نسب کیا ہوگا، اور ان کی نشانیاں کیا ہوگی، کون امام مہدی کا دعوے دار ہے، کون دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ امام مہدی ہے۔ ان سب باتوں پہ ہمیں آپ کو حجت کرنا، بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے وہ بھی تو دعویٰ کیا تھا، کیا ہوا؟ اس کے کیے گئے دعوے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلط ثابت کیا نا، کہ نہیں کیا؟ آج وہ ایک فرقہ بن کر رہ گیا، 72-73 فرقوں کا ایک حصہ بن کر رہ گیا۔ سارے دعوے اس کے غلط ثابت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، تو 72-73 فرقوں کا وہ ایک حصہ بن کر رہ گیا، اور اس کے فرقوں میں جتنے بھی لوگ ہیں کسی کو بھی فیض حاصل نہیں ہے، کسی کا بھی تعلق رب سے نہیں جڑ پایا۔ تو ہمیں آپ کو ان سب باتوں پہ حجت کر کے، بحث کر کے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ ہم آپ فیصلہ نہیں کرنے والے کہ کسے امام مہدی ہونا چاہیے، کیا نسب ہونا چاہیے، ان کے ماں کا نام، ان کے باپ کا نام، خود ان کا نام کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، یہ ہم آپ فیصلہ نہیں کرنے والے۔ ہمارے آپ کے فیصلہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ دراصل یہ تو فیصلہ رب کا ہے، یہ حکمت رب کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وہ چاہے جو وہی ہونا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ امام مہدی کا ظہور وہ کب کرے گا، کیا نشانیاں ہوگی، امام مہدی کے لشکروں میں کسے کسے وہ شامل کرے گا، امام مہدی کی وہ تعلیم، وہ علم، گیان کن کن بندوں کے اوپر وہ نچھاور کرے گا۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اس کی عطا ہوگی اس کے بندوں کے لیے، جسے رب تعالیٰ چن لے گا، جسے امام مہدی کے لشکروں میں شامل کرنا چاہے گا، جسے ان کی گیان، ان کی تعلیم عطا کرنا چاہے گا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا ہی، وہ تو اپنے ان بندوں کو چنے گا ہی اور امام مہدی سے جوڑے گا ہی۔ یہ ہم آپ کے چاہنے اور نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اور رہی بات جن باتوں پہ آپ بحث کرتے ہیں کہ امام مہدی کا نسب یہ بتایا گیا ہے، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی نام ہوگا، یہ بتایا گیا ہے، روایتیں حدیثیں آئی ہے، ماں کا نام آمنہ، باپ کا نام عبداللہ، اور وہ نشانیاں جو روایتیں بتائی گئی ہے، تو آپ لوگ انہی باتوں کے اوپر حجت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ ہم یہ نشانیاں، یہ جو حدیثیں آئی ہیں، جو باتیں حدیثوں میں بتائی گئی ہے، وہ سب دیکھیں گے تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ انہی باتوں کے اوپر لوگ زیادہ تر حجت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ ایسی ایسی نشانیاں جو حدیثوں میں، روایتوں میں آئی ہے، وہ دیکھیں گے تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے جو نشاندہ تھے، نشانی تھے، جو ان کا نزول، ان کا دنیا میں آنے کا جو اللہ نے نشانی روایتوں میں، کتابوں میں بیان فرما چکا تھا، تو کیا مکہ والے ان باتوں سے، ان نشانیوں سے انجان تھے؟ نہیں انجان تھے نا، وہ تو جانتے تھے نا کہ یہ نشانی ہوگی، ایک آخری نبی آنے والا ہے، ان کے ماں کا نام یہ ہوگا، باپ کا نام یہ ہوگا، اور ان کے آنے کی یہ تاریخ ہوگی، یہ نشانی ہوگی۔ یہ کتابوں میں، روایتوں میں حضور پاک کے پیدا فرمانے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے یہ بات آ چکی تھی، اور لوگ جانتے بھی تھے، پڑھے لکھے بڑے بڑے گیانی لوگ تھے اس زمانے میں بھی، سب جانتے تھے، اور جاننے کے باوجود بھی پھر وہ حضور پاک سے جڑنے سے، حضور پاک کے دین کو اپنانے سے، ان کو نبی ماننے سے انکار کیوں کر دیے، اور کافر منافق کیوں بن گئے؟ بتائیں کیوں بن گئے؟ ابو جہل جیسا اتنا بڑا گیانی کیا نشاندہی نہ جانتا ہوگا حضور پاک کے نبوت کے بارے میں کہ وہی آخری نبی ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتا ہوگا؟ ابو جہل جیسا پڑھا لکھا وہ عالم، وہ گیانی، کیا وہ نہیں جانتا ہوگا؟
वो तो सब कुछ जानकर बैठा हुआ होगा ना। फिर उसके बावजूद भी हुजूर पाक के जाहिरी वजूद से वो निशानी उसने आंखों से, खुले आंखों से देखी, वो मोजजात उसने खुली आंखों से देखा, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा काफिर और इस्लाम से खारिज क्यों हो गया, और अपने आप को हिलो हुज्जत में ही अपनी जिंदगी को क्यों तबाह कर दिया? इस बात की जवाब है आपके पास। और बहुत सारे मक्का के लोगों ने इन्हीं हिलो हुज्जत में अपनी जिंदगी तबाह कर दी, अपने आप को बर्बाद कर दिया और काफिर और मुनाफिक बनकर रह गए। लेकिन जिनको हुजूर के साथ होना था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक होना था, जिनको ईमान वाला बनना था, मोमिन बनना था, उम्मती बनना था, ऐसे लोगों का बेड़ा पार हो गया और वो कामयाब हो गए। और जिनको गुमराह रहना था, तबाह और बर्बाद होना था, वो लोग गुमराह के गुमराह ही रह गए। तबाह और बर्बाद ही उनके नसीब में था, उनके मुकद्दर में था, और खुद को तबाही या बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया और हो गए। कहना यह है कि अपनी खुली आंखों से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शख्सियत को नहीं पहचान पाए, उनके इंसाफ परस्ती को नहीं देख पाए, उनके तालीम को, उनके ज्ञान को नहीं देखें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ परस्ती को, उनके तालीमात को, लोगों में भाईचारा कायम करने वाली तालीम को, लोगों को जिहालत से निकालकर, गुमराहियत से निकालकर एक रब, एक अल्लाह की पहचान कराना, जानवरों को इंसान बनाना, लोगों को हक की दावत देना, ये सब बातों को उस दौर के लोगों ने नहीं देखा, नहीं पकड़ा, नहीं समझा। और देखा भी तो क्या देखा, पकड़ा भी तो किस चीज को पकड़ा? तो हीलो हुज्जत, बहस, इसी बातों को पकड़ा, इसी बातों पर वो गामजन रहे। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, आलिम हस्ती, अबू जहल जैसा इतना ज्ञानी पढ़ा लिखा शख्स, वो भी इसी हीलो हुज्जत में, बहस में अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया, अपने आप को बर्बाद कर लिया, और काफिर मुनाफिकों में लोग शामिल हो गए और बड़ा से बड़ा काफिर जालिम बनकर रह गया। और वजह क्या रही? वजह जो रही वो यही रही, हुज्जत, बहस, कि ये नबी कैसे हो सकते हैं। उनकी नबूवत को मानने से, इकरार करने से मुनकिर हो जाना, इनकार कर देना। तो मेरा ये कहना है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर में जो वाक़ियात पेश आए, और वो लोग हुजूर पाक के दौर में जिन लोगों ने अपने इल्म के आधार पर, अपने इल्म, अपने ज्ञान पर फूले न समाते थे, अपने इल्म के आधार पर तकब्बुर में, अहंकारी में डूबे रहा करते थे, जिन लोगों को इल्म का अहंकार, तकब्बुर इतना सर पे चढ़ चुका था, इतने अंधे हो चुके थे अपने इल्म और ज्ञान के बुनियाद पर, कि उन्होंने हुजूर पाक के नबूवत को भी मानने से इनकार कर दिया। हुजूर नबी करीम आखिरी नबी हैं, इस बात से भी इनकार कर दिया। अपनी अहंकारी में इतना चूर चूर रहा करते थे कि वो ऐसे लोग अपने हीलो हुज्जत में, बहस में इतने डूबे हुए रहते थे कि इनकार करते थे कि मैं इसे कैसे नबी मान लूं, इसे आखिरी नबी कैसे मान लूं, इसकी नबूवत कैसे मैं तस्लीम कर लूं। ये सब उनके अंदर इल्म का तकब्बुर, अहंकारी भरा हुआ था। दुनिया के ऐसो आलाइसों में डूबे रहने वाले शख्स था वो लोग। खुद तो गुमराह और काफिर हुआ ही, ये लोग और उन लोगों को भी गुमराह कर दिया, काफिर बना डाला जो ऐसे लोगों की पैरवी करते थे। तो जो हाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर में हुआ है, वही हाल, वही वाक़ियात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दौर में, जो दौरे आखिरत होगा, जो इमाम मेहदी का दौर होगा, इस दौर में भी उसे सामने आना है। उस दौर में भी अल्लाह तबारक व तआला ने काफिर, मुर्तिद, मुनाफिकों को छांटा था और मोमिनों को अलग छांटा था। तो ये दौर जो इमाम मेहदी का दौर होगा, हुजूर पाक का दूसरा दौर जो होगा, इस दौर में भी काफिरों को, मुर्तिदों को, मुनाफिकों को अल्लाह छांटेगा और मोमिनों को
अलग छांटेगा। जो मोमिन होंगे उनको इमाम मेहदी के गिरोह में शामिल कर देगा, और जो काफिर होंगे, मुनाफिक होंगे, मुर्तिद होंगे, उनको अलग छांट देगा। और वही सेम वाक़ियात दोहराए जाएंगे, वही हीलो हुज्जत बहस देखने को मिलेगा इस दौर में भी। और जो मोमिन होंगे उन्हें अल्लाह इमाम मेहदी के गिरोह में शामिल कर देगा। वो इन हीलो हुज्जत में नहीं पड़ेंगे, उनकी आंखें सत्य को देखेगी, हकीकत को जानेगी, हकीकत को तस्लीम करेगी। वो ये देखेगी कि ये रास्ता, ये ज्ञान, ये तालीम जो हमें मिल रहा है, ये हमें हक की ओर ले जा रहा है या बातिल की ओर ले जा रहा है, ये हमें रब से जोड़ रहा है या शैतान से जोड़ रहा है। उनकी आंखें ये देखेगी। और जो काफिर, मुनाफिक होंगे, मुर्तिद होंगे, मुनाफिक होंगे, उन्हें ये सब कहाँ दिखने वाला, उन्हें ये सब दिखेगा थोड़ी। उनके ऊपर तो अपने इल्म का, तालीम का, ज्ञान का अहंकार चढ़ा हुआ होगा, उनके आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ होगा। और ऐसे लोग अपने अहंकारी के बुनियाद पर हीलो हुज्जत करेंगे, बहस करेंगे, मानने से इनकार करेंगे, हक उनको दिखेगा ही नहीं। तो ऐसे लोग अपने अहंकारी के बुनियाद पर हीलो हुज्जत करेंगे, बहस करेंगे। ऐसे लोगों को जो हक की दावत है वो दिखेगी नहीं, हक का रास्ता वो दिखेगा नहीं। उन्हें असल तालीम, असल ज्ञान की परवाह ही नहीं होगी। उन्हें ये दिखेगा नहीं कि ये तालीम, ये ज्ञान जो चल रहा है, ये इमाम मेहदी के मिशन का ही एक हिस्सा है, जो अल्लाह से जोड़ रहा है, लोगों को मोमिन बना रहा है और इमाम मेहदी के लश्करों में शामिल कर रहा है, उनके गिरोह में शामिल करने वाला रास्ता है। उन्हें यह सब दिखेगा ही नहीं। और ठीक पिछले दौर की तरह, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, उस दौर की तरह इस दौर में भी वही वाक़ियात दोहराए जाएंगे, वही हीलो हज्जत बहस होगी, करेंगे। और काफिर मुनाफिक जहन्नमी बनते चले जाएंगे, लोग बनते चले जाएंगे। और इमाम मेहदी ऐसे लोगों के हाथ कतई नहीं आएंगे। इमाम मेहदी को ये कभी देख नहीं पाएंगे, ना पहचान पाएंगे, अपने अहंकारी के बुनियाद पर, अपने हीलो हुज्जत में रहने की वजह से। आज जिसे इमाम मेहदी मिलना है, उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ब खुद इमाम मेहदी का राह इख्तियार कर लेगा, उनकी तालीम को स्वीकार कर लेगा, अपना लेगा। जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर में लोग इसी इंतजार में थे, इसी ख्वाब ख्याल में थे कि आखिरी नबी आने वाले हैं, उनकी पैदाइश होगी, आएंगे, इंसाफ परस्त होंगे, इंसाफ से लोगों को भर देंगे। इस इंतजार में हैं और नबी आए हुए हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान भी कर दिया, लेकिन उनकी नबूवत को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। अब भी लोग इंतजार में हैं कि आने वाले हैं, आएंगे, ये निशानियां होगी। लेकिन जिन जिन लोगों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम करना था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना था, उम्मती बनना था, उन लोगों वैसे लोग तस्लीम कर चुके हैं, नबी मान चुके हैं, उम्मती बन चुके हैं। और जो इस इंतजार में है, वो इसी इंतजार में रह गए और हिलो हुज्जत में बहस में अपनी जिंदगी को तबाह कर लिए, बर्बाद हो गए, काफिर और मुनाफिक बनकर रह गए। तो वही ठीक सरकार इमाम मेहदी के दौर में भी होगा कि लोग अभी, और होगा क्या, हो रहा है, अभी लोग क्या कर रहे हैं, इसी निशानी में है कि किताबों में, रिवायतों में ये निशानियां हैं, ये बातें हैं, ये नसब होगा उनका, और उनके माँ का नाम आमना होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, तो वो मिंबर पे खड़े होंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, तो साथ में वो ईसा अलैहिस्सलाम बैत करेंगे, तो नमाज पढ़ेंगे। ऐसी ऐसी बातें, रिवायतें को लेकर बैठे हुए हैं, इस इंतजार में है। और इमाम मेहदी का ज़हूर हुआ है। इमाम मेहदी तो अभी क़यामत में है, इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है, इमाम मेहदी का मिशन जारी हो चुका है और लोग इंतजार में हैं। इस दौर में भी वही वाक़ियात, वही रिवायत दोहराई जा रही है। तो अब भी वक्त है, इस बात को समझें, आंखें खोलें, देखें कि इमाम मेहदी की जो निशानियां हैं वो जाहिर हो चुकी है, इमाम मेहदी की जो तालीमात है वो चल चुकी है, इमाम मेहदी की जो मिशन है वो जारी और सारी हो चुकी है। और अगर जो लोग इस बात को तस्लीम करेंगे, अपनी आंखें खोलेंगे और इस चीज को देखेंगे, तो वो मोमिनों के गिरोह में शामिल हो जाएंगे, इमाम मेहदी के गिरोह में शामिल हो जाएंगे। और जो नहीं मानेंगे ऐसे लोग मरदूद और काफिर हो जाएंगे। और ये इमाम मेहदी की जो मिशन है वो चल रही है। सरकार गौहर शाही हमारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी तालीम क्या बता रही है, उनकी तालीम इमाम मेहदी की ही तालीम साबित हो रही है। उनका चेहरा मुबारक चांद पे जो निशानी के तौर पर अल्लाह ने जाहिर किया, ये इमाम मेहदी की ही निशानी बता रही है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे निशानात अल्लाह ने जाहिर कर दिया है
آنکھیں کھولیں گے سمجھیں گے تو نہ دکھے گا، آنکھیں کھولیں گے ہی نہیں رہ جائیں گے حجت میں بحث میں تو کچھ بھی نہیں دکھے گا۔ وہی حال ہوگا جو ابو جہل کا ہوا تھا، جو ابو لہب کا ہوا تھا، جو ان مکہ کے جو منکر ہو گئے، جو کافر ہو گئے، وہی حجت میں جو وہ لوگ رہ گئے، تو وہی حال آج کے دور کے لوگوں کا بھی سیم ہونے والا ہے۔